Today, we are diving into functionality which you all had asked for. And when I say you, I mean you all who are using Task Tracker. And as a community, you are helping us to make it more and more useful and more beneficial. So, with that came task approval mechanism. So, many of you are already managing your task, your deadlines, your deliverables every day. And in this session, we will help you move from just marking things done to building a structured, a more reliable reviewing process if it is needed in your organization using task approval mechanism. Now, what it will help you is that so your team's output becomes more consistent, more accountable, and then you have a checking module basically in which you are approving the task once it is completed. And before we begin, we would love to stay connected with you beyond this session. So please do share, as I asked, your company's name, your phone number in the chat so our team can understand your case better and stay in touch with you. And if you're finding these sessions valuable, and if you want to check out more relevant information, do follow us on Facebook, on LinkedIn, on all the social media platforms. And we also have a YouTube channel where you will find all the resources related to how to use Task Tracker, Sales Tracker, Stack Tracker, our AI calling model Tavi. And also we keep sharing small and big tips over there to how a functionality can be used better in any organization. So we regularly share practical strategies, product updates, real business use cases to help you get more value from the system that you're using and basically improve the execution. And one very quick, small thing, if you have anything related to Task Tracker, if you're facing any challenges, if you have any query, if you want to understand more deeply, please refrain from asking that during the webinar. At the end of the webinar, please let us know and we will connect with you one-to-one to address any sort of challenges that you are facing. और अगर आपको अप्रूवल मैकेनिज्म से रिलेटेड कोई भी कंसर्न है या कोई भी चीज आप बेटर समझना चाहते हैं, कोई आपका क्वेश्चन है, तो भी प्लीज पार्क योर क्वेश्चंस एंड वेट टिल द एंड ऑफ द सेशन. हो सकता है जैसे जैसे हम मूव ऑन करें वो क्वेश्चन हम ऑलरेडी आंसर कर दें, और दूसरा ये भी हो सकता है कि वो क्वेश्चन जब आप एंड में पूछेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाता है, हमारा फ्लो डिस्टर्ब नहीं होता है और हम सबके जो लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं सबके टाइम को रिस्पेक्ट कर सकेंगे. तो आप लोगों ने हमें क्या challenges बताए जो आपको face करने पड़ रहे थे while you were using Task Tracker? So as the team was growing, 4 things tend to happen, and it was, a good point for us to understand and get clarity on it. So जब review mechanism नहीं था और task used to get marked and completed, but no one was actually checking it before it was considered done. And उसकी वजह से inconsistency, because there is no shared review step. Quality ends up varying from person to person, and rework of small issues that would have been caught at an early, instead got discovered later on in the whole workflow, which meant redoing the work that was already finished. तो पूरा project complete हो गया. अगर वो छोटी सी गलती हम पहले पकड़ लेते या उस चीज को हम पहले review कर लेते तो it would have been better. So और मेन इशू उन सब चीजों की वजह से हो रहा था कि अगर अप्रूवल मैकेनिज्म नहीं था, ऑल्दो बहुत सारी कंपनीज और बहुत सारे यूजर्स हमारे टास्क रीओपन वाली फंक्शनैलिटी यूज कर रहे थे टू रिव्यू इट, बट देयर वाज नो कॉमन विजिबिलिटी अराउंड इट. स्पेशली अगर किसी और ने टास्क असाइन करा होता था किसी और को कंप्लीट करने के लिए, मतलब थ्री पैनल्ड अगर मैकेनिज्म था तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी. दैट मीन्स कि अगर लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक मैनेजर है ए, एक एम्प्लॉय है बी और एक एम्प्लॉय है सी. नाउ मैनेजर ने एम्प्लॉय सी को काम दिया और मगर बी को बोला अप्रूव करने के लिए, राइट? नाउ बी ने जब चेक करा तो उसने रीओपन कर दिया, मगर मैनेजर को पता ही नहीं चला कि वो काम रीओपन हुआ है. So that is what was missing in the system. So no visibility. Managers, leads don't have a reliable way to see what was genuinely, getting completed versus what appeared to be completed in the system. So based on all your feedback, the concept of
task approval came into being on the dashboard. Now, task completion and task quality are two different things, and that is what we realized when we ourselves understood the problem. And just because something is marked done doesn't mean कि वो actually में खत्म हो गया है. That distinction became very, very important for us to address. So when you mark task done, that word doesn't tell you much, है ना? उसमें हमने सिर्फ एक बटन लगा दिया था word कि complete हो गया है. Now, did the right person check it? Is it actually good enough? Is it really ready to send out? Can you close it? Can you stop worrying about it? Most of the tasking tools only show done and not done. That's it. जितने भी tasking tools we try to search कि हमें कहीं से समझ में आएगा कि ये अप्रूवल मैकेनिज्म कैसे चलता है, वी रियलाइज कि किसी में भी अप्रूवल मैकेनिज्म नहीं था, सब में बटन था कि ये कंप्लीट हो गया है. And that's where we went back to all of you, to some of our clients. We sat with them, we brainstormed with them कि इसमें क्या क्या possibilities हो सकती हैं और इसको ठीक समय कैसे चलाना चाहिए. And they you know that is why जो टास्क अप्रूवल ने जो गैप था वो इमीडिएटली फिनिश कर दिया उस गैप को. तो अब ये कैसे चलता है? Let's define it clearly. Task approval is structured review step inserted into your existing workflow. तो हमने कोई नई चीज नहीं बनाई है. I will show you कि how it works. But हमने आपके लिए कोई additional step add नहीं करा है. It is inserted in your existing task assignment, in your existing workflow, in your existing dashboard. Everything is very similar, just that it has become more structured. So here's how the process works, broken into 5 stages. Assign the task to a team member. Simply assign करा, जो आप पहले भी कर रहे थे. आपने काम को कंप्लीट करा. The team member finishes at as usual. आपने अभी भी बटन के साथ ही उसको क्लिक करा है. बट हमने एक उसमें रिव्यू लेवल डाल दिया, तो मैनेजर उसे रिव्यू करे. इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग ऑटोमेटिकली, द मैनेजर इज नाउ गेटिंग अ नोटिफिकेशन कि इसको अप्रूव कर दीजिए. जब मैनेजर ने इसे अप्रूव करा या उसे रिवाइज करा, विच एवर वे, इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड तो उसने रिवाइज करने के लिए बोला. इफ ही सेटिस्फाइड, ही इज अप्रूव्ड इट. द टास्क इज ऑलरेडी क्लोज एंड द होल प्रोसेस गेट्स कंप्लीटेड. बट अगर उसने रिवाइज करने के लिए कहा तो टास्क क्लोज नहीं हुआ, टास्क आपका ओपन ही शो हो रहा है. So close the task only after approval does the task move to truly closed state. And obviously मैं दोबारा से इसी चीज को reiterate करना चाहती हूँ कि इसकी वजह से better quality, every piece of works get checked. Now इसमें जरूरी नहीं है कि आप सभी कामों पे अप्रूवल लगाओ. जो काम आपके इंपॉर्टेंट है आप उस पे अप्रूवल मैकेनिज्म लगाओ. आपके एम्प्लॉय की अकाउंटेबिलिटी बेटर होगी क्योंकि इस बार उन्हें पता है कि उनका कोई सीनियर उस काम को चेक करेगा. एंड वेन एवर देर इज अथॉरिटी की ये काम चेक हो रहा है या रिपोर्ट में उस काम का वो कंप्लीट नहीं काउंट होगा जब तक वो चेक नहीं हो जाएगा, तो ऑब्वियसली वो टाइम से पहले ही उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेगा. एंड ये मैंने आपको अभी भी बताया कि पूरे प्रोसेस में अगर एक स्टेप चेक करने की वजह से बाकी 10 स्टेप्स पे अफेक्ट पड़ रहा है, तो ये जो पूरा रीवर्क का जो स्ट्रक्चर है ना, पूरा काम दोबारा करने का, वो प्रॉब्लम अब हट जाएगा क्योंकि वो आपने लेवल 1 पर ही उसको चेक कर लिया होगा. ऑब्वियसली टाइम सेव होगा क्योंकि जब टाइम सेव हो रही है, दो लोगों को दोबारा काम नहीं करना पड़ रहा है. कोई और इट सेव्स मोर टाइम लेटर बाय स्टॉपिंग मिस्टेक्स बिफोर दे ग्रो इनटू अ बिग थिंग, है ना. एंड विजिबिलिटी मैंने आपको भी समझाई कि आपके मैनेजरियल लेवल पे, अप्रूवल लेवल पे, टीम मेंबर के लेवल पे एक और लेयर विजिबिलिटी की क्रिएट हो गई, जो ना सिर्फ टास्क के बेसिस पे हो रही है मगर कौन सा काम एक्चुअली कंप्लीट हुआ है, कौन सा अप्रूवल के लिए वेट कर रहा है, वो भी एस्पेक्ट इसमें आ जाएगा. सिंपली पहले टास्क क्लोज हो रहा था, उसे आप रीओपन कर रहे थे, अब आपने उसमें एक अप्रूवल लेयर लगा दी है. फ्रीक्वेंट मिस्टेक्स जो थी वो कहीं ना कहीं क्रैक्स में स्लिप हो रही थी, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में स्लिप हो रही थी और दोबारा काम हो रहा था. अब ये कंसिस्टेंट और वेरीफाइबल क्वालिटी के साथ आ जाएगा. कॉस्टली रिविजन अवॉइड हो सकते हैं क्योंकि अब आप जिस लेवल पे सबसे ज्यादा जरूरी है अप्रूव करना, उस लेवल पे आप मार्क कर रहे हो कि ये सेक्शन या ये टास्क अप्रूव होना बहुत जरूरी है. और टास्किंग जहां आ जाती है, डिलीवरेबल्स वैसे ही डिले नहीं होते हैं.
मगर अप्रूवल की वजह से कई बार क्या होता है, आपने टास्क कंप्लीट कर दिया, अप्रूवल नहीं आया, और या आपने टास्क क्लोज नहीं करा क्योंकि आपको अभी तक आपके मैनेजर से अप्रूवल नहीं मिला था काम का, टू अपलोड इट, टू पब्लिश इट, टू सेंड इट फॉर प्रिंटिंग. ये तो मैंने मार्केटिंग के एग्जांपल दिए, बट आपसे जो मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे कि हमारा अभी तक प्रोक्योरमेंट का जो परचेज ऑर्डर है वो ओके नहीं हुआ है, अप्रूव नहीं हुआ है, इसलिए हमने प्लेस नहीं करा है ऑर्डर. तो वो जो डिलेड डिलीवरेबल्स थे वो आपके इससे चेंज हो जाएंगे, क्योंकि अब आपके डैशबोर्ड पे आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा सेइंग कि आपका ये अप्रूवल पेंडिंग है. एंड यस, कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी तो ऑब्वियसली ऐड हो ही जाती है. और इम्पॉर्टेंट थिंग ये नहीं है कि टास्क अप्रूवल आप सिर्फ टास्किंग में यूज कर सकते हो. इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि सेम मैकेनिज्म आपका डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में यूज होता है. मार्केटिंग का एग्जांपल्स मैंने आपको दिया है कि इट इज यूज टू रिव्यू क्रिएटिव. HR है तो आपने ऑनबोर्डिंग का टास्क अगर लगा रखा है, एम्प्लॉय डॉक्यूमेंटेशन आपको अप्रूव करने हैं बिफोर they are signed or given to the employees, तो आप वो लगा सकते हैं. Operations में it is used to verify the daily process sometimes. Support, it is used to review the ticket resolutions that are being given to the customer. Finance, it is used to approve invoices या reimbursements. और reimbursements के केस के लिए मैं और बोलना चाहूंगी, मैंने अभी रिसेंटली बहुत सारी कंपनीज में से विजिट करा जहां पर मैंने देखा कि वो रीइंबर्समेंट के लिए एक अलग ही टूल यूज कर रहे थे. एंड देन आई वाज लाइक कि व्हाई यूजिंग अनदर टूल व्हेन यू कैन डू योर रीइंबर्समेंट्स थ्रू दिस इटसेल्फ, क्योंकि ऑल यू नीड इज रीइंबर्समेंट का अप्रूवल, कि आपके मैनेजर ने अप्रूव कर दिया कि ये रीइंबर्स एप्लीकेबल है कि नहीं है. आपने सेम चीज रीइंबर्समेंट बकेट में डाली, अपना स्क्रीनशॉट डाला, आपके मैनेजर ने उसे ओके करा और आपके अकाउंट टीम में उसे पे कर दिया अगर वो अप्रूव्ड है तो इट इज वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी क्लियर. एक और टूल पे पैसे मत वेस्ट करिए, ये आपका टूल हेल्प करेगा उन सारे छोटे छोटे टूल्स को हटाने के लिए, है ना. सो कॉमन थ्रेड अक्रॉस ऑल ऑफ दीज, एनीवेयर एवरीवेयर, wherever a task moves from one person to a decision maker, a review steps can be added to add value. और अगर हम बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करें बिफोर वी मूव इनटू द डेमो, मैं आपको क्विकली लाइव डेमो, आई विल जस्ट टेक 1 more minute टू एक्सप्लेन इट टू यू, कि 4 प्रैक्टिकल गाइडलाइंस है ना. फर्स्ट इज डिफाइन क्लियर अप्रूवर्स. ये हमें जानना जरूरी है कि इस काम को अप्रूव कौन करेगा. मैंने टास्क असाइन करा, एज आई सेड, मैनेजर ए, एम्प्लॉय बी, एम्प्लॉय सी. अगर मैनेजर ने टास्क असाइन करा तो मैनेजर अप्रूव कर रहा है उस टास्क को क्लोज होने के टाइम पे, कि उस किसी और को, एम्प्लॉय बी को अप्रूव करना है जो काम एम्प्लॉय सी को असाइन हुआ था. सो दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल. सेकेंड इज सेट अप्रूवल टाइमलाइंस, है ना. रिव्यूज ऑल्सो नीड टू हैव अ विंडो. ऐसा नहीं हो सकता कि भैया रिव्यू भी आप इनडेफिनेटली ओपन रहेगा. द रिव्यूज ऑल्सो नीड टू हैव अ विंडो. रिव्यूज की भी टाइमलाइंस होनी चाहिए. एंड थर्ड, प्रोवाइड अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक. व्हेन अ टास्क इज सेंट बैक फॉर रिविजन, आपके पास ऑप्शन होगा कि आप उस पर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दो, या आप अपने एम्प्लॉय से कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लो, या जिसने भी अप्रूव करा उसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लो. एंड लास्टली, tasks which are pending approvals, you know, regularly checking the queue keeps the whole process moving smoothly instead of stalling. तो मॉर्निंग में अपने लिए टाइम सेट करिए कि मेरे को ये अप्रूवल्स, अगर स्पेशली अगर आप मैनेजर लेवल पे काम कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि आपने अपने डैशबोर्ड में जो आपका अप्रूवल सेक्शन है उसको आप कॉन्स्टेंटली कीप योर सेल्फ इन्फॉर्म कि कोई अप्रूवल पेंडिंग तो नहीं है. क्योंकि कई बारी प्रोसेसेस के बॉटलनेक्स हम हो जाते हैं, रोड ब्लॉक हम हो जाते हैं, मैनेजर्स हो जाते हैं, ओनर्स हो जाते हैं. तो दिस इज द मैकेनिज्म व्हिच इज बिल्ट सो दैट वो रोड ब्लॉक को हम अवॉइड कर सकें, उस बॉटलनेक को हम अवॉइड कर सकें. So now that's how I hope I've explained you the concept well. Let me invite Sunny over here. Sunny, are you there? Yes, ma'am. Okay, so Hello. Sunny is here with us. He is a product expert and he is also one of our best customer onboarding specialists. He helps all our customers to figure out कि इस process को टास्क ट्रैकर में कैसे implement कर सकते हैं, कैसे smoothly run कर सकते हैं. So Sunny, over to you. Please share your screen and show our clients who've joined us from everywhere कि task approval mechanism कैसे चलता है. Definitely, ma'am.
Hello everyone, Sunny Gupta this side from Tracker Suite and I'm the product person here. So I'm just sharing my screen with you. So आप सभी को मेरी screen visible है? Please confirm. Yes, Sunny, we can see your screen. Great. So it's very simple. Like जैसे हम अभी टास्क ट्रैकर यूज कर रहे हैं, जैसे हम टास्क असाइन करते हैं, तो सिमिलर प्रोसेस हमें यूज करना है. तो हम एड ए सिंगल टास्क पे आते हैं. यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप जिस चीज के रिगार्डिंग आप टास्क असाइन करना चाहते हैं, लाइक अगर आप बकेट्स को डिपार्टमेंट वाइज यूज कर रहे हैं, डिपार्टमेंट वाइज और प्रोजेक्ट वाइज, तो सेम प्रोसेस आप यहाँ पे यूज करेंगे. देन आप टीम मेंबर का नेम सेलेक्ट करेंगे जिनको भी टास्क आप असाइन करना चाहते हैं. देन टास्क का ड्यू डेट सेट करेंगे, ड्यू टाइम सेट कर सकते हैं, टैग मेंबर ऐड कर सकते हैं फॉर नोटिफिकेशन. सेम प्रोसेस जो हम टास्क असाइनिंग के लिए यूज करते हैं. देन अप्रूवल रिक्वायर्ड. अब आ जाते हैं हमारे न्यू फीचर अप्रूवल सिस्टम पे. सो जैसे ही हम कोई भी टास्क असाइन करते हैं टीम मेंबर को, सो पहले हमारे पास कोई क्लैरिटी नहीं था कि जो टास्क हम दे रहे हैं वो एक्चुअल में कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है. सो फॉर एग्जांपल अभी जो ओनर है कंपनी के, वो टास्क असाइन कर रहे हैं और टीम मेंबर को, और वो चाहते हैं कि जो उनके मैनेजर है, जो टीम मेंबर के मैनेजर है, रिपोर्टिंग मैनेजर है, वो उनके टास्क को अप्रूव करेंगे या वो खुद से अप्रूव करेंगे. सो वो यहाँ पे नेम सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी पर्सन टास्क अप्रूव करेंगे. अटैचमेंट रिक्वायर्ड, सेम. डिस्क्रिप्शन आप टेम्पलेट से ले सकते हैं एंड देन टास्क को सेव करेंगे. जैसे ही हमने टास्क असाइन किया, सो इंस्टेंट जो टीम मेंबर है उनको नोटिफिकेशन चला जाएगा कि उनको टास्क असाइन हुआ है. सो इट्स अ टीम मेंबर एक्सेस जिनको टास्क असाइन हुआ था. एक ये टीम मेंबर का डैशबोर्ड इंटरफेस है जहाँ पे वो सिर्फ अपने टास्क देख सकते हैं, और जो भी टास्क उनका कंप्लीट हुआ है, लाइक ये टास्क उनको असाइन किया गया था, वो देख सकते हैं यहाँ पे कि उनको ये टास्क असाइन हुआ है, जो कि उनको ऋषभ जी ने असाइन किया है, और ये जो अप्रूवल है वो ऋषभ जी ही अप्रूव करेंगे इस टास्क को. सो सिंपल. जैसे ही हमने टास्क क्लोज किया, सो जैसे टीम मेंबर टास्क क्लोज करेंगे, सो जो मैनेजर है, जिस पर्सन ने टास्क असाइन किया था, जो अप्रूवल मैनेजर है हमारे, उनको नोटिफिकेशन चला जाएगा कि ये टास्क अप्रूवल के लिए आया है, एंड वो इजिली चेक कर सकते हैं. अगर वो अप्रूव करना चाहते हैं टास्क, वो इजीली अप्रूव कर सकते हैं. अगर वो रिजेक्ट करना चाहते हैं, वो रिजेक्ट कर सकते हैं. अगर अप्रूव करते हैं, सो जो टास्क है हमारा वो क्लोज माना जाएगा. अगर हम वो रिजेक्ट करते हैं, सो ये टास्क वापस से रीओपन होकर के टीम मेंबर के एक्सेस पे चला जाएगा. ओके. सो फॉर एग्जांपल ये टास्क हमारा अप्रूव हो जाता है, सो ये टास्क क्लोज माना जाएगा. सो अब बात कर लेते हैं कि इसका नोटिफिकेशन कैसे आता है. तो जैसे ही हमने कोई भी टास्क असाइन करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मुझे कोई टास्क मिला था, मैंने क्लोज किया, और जो मेरे अप्रूवल मैनेजर है वो डिफरेंट पर्सन है, जिस पर्सन ने टास्क असाइन किया था वो नहीं है. सो जो अप्रूवल मैनेजर है, इंस्टेंट उनको एक नोटिफिकेशन जाएगा कि उनको उनके पास एक टास्क अप्रूवल के लिए आया है जो कि सनी ने क्लोज किया, और क्या वो टास्क है वो डिस्क्रिप्शन में उनको दिख जाएगा. उन्होंने टास्क को रिव्यू किया, उन्होंने रिवाइज किया, देखा कि हाँ ठीक है, कंप्लीटली मतलब ये सनी के एंड से प्रॉपर डन हो चुका है. तो जिस पर्सन ने टास्क असाइन किया था उनको भी नोटिफिकेशन जाएगा, जो टास्क आपने सनी को दिया था वो कंप्लीट हो चुका है और अप्रूव भी हो चुका है. और जिस पर्सन ने टास्क क्लोज किया था, सो उनको भी नोटिफिकेशन जा रहा है कि उनका जो टास्क अप्रूवल के लिए गया हुआ था वो टास्क क्लोज हो चुका है. सो यहाँ पे हम ये सभी नोटिफिकेशंस दे रहे हैं सो डेट एक क्लियर विजिबिलिटी रहे टास्क का, जो टास्क है वो डिले ना हो विद द हेल्प ऑफ नोटिफिकेशन. एंड आपके जो टीम मेंबर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, वो टास्क अप्रूवल लिस्ट इजीली चेक कर सकते हैं. सिंपल. जो हमारा आई आइकन है यहाँ पे, ये जो फीचर है वो एनहेंस किया जाएगा. तो यहाँ पे आपको टास्क अप्रूवल लिस्ट मिलेगा. टास्क अप्रूवल लिस्ट में वो चेक कर सकते हैं कि ऐसे कितने नंबर ऑफ टास्क हैं जो अप्रूवल के लिए पेंडिंग है. और जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम 3 टास्क यहाँ पे अप्रूवल्स के लिए पेंडिंग है, ये वो इजीली यहाँ से रिजेक्ट कर सकते हैं या अप्रूव कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये अगर अप्रूव होता है सो टास्क अप्रूव है, अगर रिजेक्ट करते हैं तो ये टास्क वापस से रीओपन. या सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर मैनेजर टास्क को रिजेक्ट कर रहे हैं, सो वो यहाँ पे रीजन भी मेंशन कर सकते हैं
कि क्यों ये कंप्लीट नहीं है, सो दैट जो टीम मेंबर है उनको क्लैरिटी रहे कि किस वजह से उनका ये टास्क रिजेक्ट किया गया है। और हमारे पास एक रिकॉर्ड भी रहेगा फिर कि किस वजह से टास्क रिजेक्ट हो रहा है। करेक्ट, उसका रिमार्क्स रहेगा। करेक्ट। सो बेसिकली हम ये हमारे पास नोटिफिकेशन डैशबोर्ड पे भी आ रहा है, जस्ट रीआइट्रेटिंग कि टास्क अप्रूवल रिक्वेस्ट हमारे पास डैशबोर्ड पे भी आ रहा है, और हम उसको फिर आई आइकन में जाकर उसकी डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से हमारे टास्क हैं जिन पे अप्रूवल हमें देना है। करेक्ट सनी? सनी, आर यू देयर? सनी, आप मेरा क्वेश्चन सुन पाए अभी? Yes, ma'am. Actually, here's some network issues. I'm just Okay. resharing my screen with you. श्योर श्योर। Yeah. मैं So, तब ma'am, तक फिर से क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। मैं ये पूछ रही थी कि जो हमारे पास टास्क अप्रूवल के जो हमारे डैशबोर्ड पे भी हमें शो कर रहा है कि इतने टास्क अप्रूवल पेंडिंग है, और जब हम उसे क्लिक करेंगे तो हम डिटेल लिस्ट देख सकते हैं कि कौन कौन से टास्क पेंडिंग है और उन्हें हमें क्या एक्शन लेना है, वहां से हम डिस्कस कर सकते हैं। करेक्ट? करेक्ट। हम अपने Great. डैशबोर्ड पर देख सकते हैं कितने नंबर ऑफ टास्क हमारे अप्रूवल के लिए पेंडिंग पड़े हुए हैं, एंड यहाँ पे हमने नोटिफिकेशन आइकन दिया हुआ है टास्क अप्रूवल रिक्वेस्ट के लिए स्पेशल, सो हम यहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली देख सकते हैं। Great. So with this, we come to an end to our webinar. I would again request all of you, अगर आपको फिर भी थोड़ी देर बाद में एक और क्वेश्चन आया है सनी, सॉरी, आई एम इंटरेस्टेड इन टास्क अप्रूवल, कैन वी कनेक्ट आफ्टर द डेमो? यस प्लीज, आपका आरएम आपको ऑलरेडी असाइंड होंगे, प्लीज कनेक्ट विद देम, और या फिर आप अपना फोन नंबर भी चैट में छोड़ सकते हैं, सो वी विल आस्क देम टू गेट बैक टू यू इमीडिएटली एंड सेट अप अ क्विक डेमो. Okay, so that brings us to the end of the session. Thank you so much for taking out time and joining us today. We really appreciate it. Omkarji, do you have a question for us? No, not now. Okay. We'll connect after that. Okay, great, sir. Thank you. As you are always a valued clients, you're not just using Tracker Suite, you're using help us improve, build it better every day. अगर आप हमारे बाकी के टूल्स नहीं यूज कर रहे हैं तो प्लीज वो आपके ऑलरेडी पैकेज में इंक्लूडेड है, प्लीज चेक देम आउट, वेदर इट इज सेल्स ट्रैकर, वेदर इट इज stack tracker, and also do try our AI calling agent. It's really helping our clients. And I would also I'm very, very happy to share that now we have more than 90,000 users who are using Tracker Suite to bring more clarity, better control, and smoother execution in their work across 25 countries. So the goal for all of us is simple: less chaos and more predictable growth. Thank you so much. We are also sharing few useful links in the chat, including our YouTube channel, our upcoming sessions, our upcoming webinars. Also, our next webinar is very, very interesting, and that's specially designed for a paid client. So please do not leave. Let me quickly tell you about it. It's about how to use AI in accounts. And we have called somebody who is an accounts wizard, who's using AI tools, who's doing sessions with globally with so many business owners like you and me to address this problem ki AI ko accounts mein kaise use kare. So we have a upcoming webinar next in the month of August with him. Please stay tuned, and I would request all you business owners, agar kuch employees hai jinhone join kara hai, apne accounts team ko lekar आइए और अपने owners को, अपने managers को बोलिए उस webinar को definitely join करें. So yeah, have a great day, guys. Thank you.